କାରାଗାର ଭିତରେ ଜଣେ ମା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ମାର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଖାଉ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ହେଉଛି ଗୋପପୁରରୁ ନେଇ ମଥୁରାପୁରରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସମୟରେ କଂସ ଜାଣିଲା ଯେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଜଣାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲା ମଥୁରାରେ ଗୋପରେ ବା ଗୋପପୁରରେ ଯେତେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଶିଶୁକୁ ମାରିଦେଲେ ତ ଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ସେଇଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବା ସେଇ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହତ୍ୟା କରେ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମା ଯଶୋଦା ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ବଢୁ ବଢୁ ଟିକେ ପିଲା ହଉ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା ପରେ ଦାମ ସୁଦାମ ସୁମଙ୍ଗଳ ଏମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ବୁଲି ଗୋ ପାଳନ କଲେ। ପୃଥିବୀରେ 2ଟି ଗୋପାଳକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଗୋପାଳନ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଟେକିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଗୋପପୁରରେ ଅଭିଶାପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ନ ମାନିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ଷା କରି ଘାସ ଗୁଡ଼ି ତୃଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏସବୁ କଳ୍ପନା। ଅନେକ କଥା ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ ସେଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗବେଷକ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦାମ ସୁଦାମ ସୁମଙ୍ଗଳ ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯମୁନାରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଚାରଣ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାରଣ ଭୂମି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତୃଣ ଗୁଡ଼ିକ କଅଁଳୁ ନେଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଗାଈଗୋରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ତିଆରି କଲେ, ଯମୁନା ନଦୀର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଉତ୍ତମ ଉଚ୍ଚ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା, ମାଟି ପକେଇ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଯମୁନାର ଜଳ ନଦୀକୁ ସେଇ ଯେ ବନ୍ଧକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରି ଆରପଟୁ ଗଲା ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ତୃଣ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ୟା ଦ୍ୱାରା ଗାଈମାନେ ଭଲରେ ଖାଇଲା ପରେ ଗୋର ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା। ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶବ୍ଦକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କୃଷ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼କୁ ଟେକିକି ଧରିଲେ। ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ମାଟି ଜମା କରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗବେଷକ ମାନଙ୍କର ମତକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋପାଳନ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ କେମିତି ଆସୁଛି। ମାମୁଙ୍କର ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାମୁ ଯେ ଭଣଜାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିଛି, ଏକଥା ବି କିଏ ଚିନ୍ତନ କରିବ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ନିଜର ବିଜୟ ହେଲା, ଅର୍ଥ କଂସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଇଏ ଜୟ କଲେ। ଇଏ ଜୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଶତ୍ରୁର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଶିଶୁପାଳ, ଜରାସନ୍ଧ ଆଦି ସବୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତ୍ରୁ। ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଆଜ୍ଞା। ସୁନାଟା 4ଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ସୁନାକୁ ପୋଡ଼ାଯାଏ, ପିଟାଯାଏ, କଟାଯାଏ, ଘଷାଯାଏ। ଏ 4ଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁନା ପହଞ୍ଚେ ବୋଲି ସେ ସୁନା, ନହେଲେ ସୁନା କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ। ସେମିତି ଜୀବନର ଜନ୍ମରୁ ସଂଘର୍ଷ। ଆପଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ପରିଚିତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ଧୀରେ 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 ସେ ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜରାସନ୍ଧ, ଶିଶୁପାଳ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବିନାଶ କରି ହବ ନାହିଁ। ବହୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତନ କଲା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତନ କଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଯୋଉ କୌରବ ମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୌରବ ମାନେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିନାଶ କରିଦଉ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଶକୁନି ସହଯୋଗ କଲା। ଶକୁନି କାହିଁକି ସହଯୋଗ କଲା କେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶକୁନିର ରାଗ ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଂଶ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେ ଏକ ଛଳନାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିକଟତର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ତାଙ୍କର ପଶା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପଶା ଖେଳରେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ରାଜା ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ କି କଣ, ତାକୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବେ। ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସବୁ କିଛି ବାଜି ଲଗେଇଲା ପରେ ପରେ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ବି ବାଜିରେ ଲଗେଇଲେ। ଏହା ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସହନୀୟ ନୁହେଁ, କେବେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ବି ନାହିଁ, ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖାଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ, ଶେଷରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ରାଜସଭାରେ ଉଲଗ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ହେଲା। ଲଜ୍ଜାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଭଳି ଶକ୍ତି କାର ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଲଜ୍ଜାରେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜାକୁ ନିବାରଣ କରି ସେ ନିଜର ସମ୍ମାନ। ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାଥା ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା, ଦ୍ୱାରକାର ଅଧିପତି ସେ। କୌରବ ଜିତିଲେ କି ପାଣ୍ଡବ ଜିତିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନା ଲାଭ ଥିଲା ନା କ୍ଷତି ଥିଲା, ନା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବି ଅଭାବ ହବ। ମହାତ୍ମା ଜାଣିଥିଲେ ଥରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ
ए भारत रे एमिति अधोपतन हब जे एक उत्थान करिया भारी कष्ट। ज्ञानी गुणी समस्ते मरीजिबे, देश रे अन्य प्रकार अन्याय चलिबो, अवैधिक विचार चलिबो, अशास्त्रीय विचार चलिबो, एगुड़ाक आखि आगे देखिले से जड़े राजा पृथ्वी रे एमती इतिहास नहीं आज्ञा। जड़े राजा निजर किसी स्वार्थ नहीं, जय कले कौन पराजय कर, निजर स्वार्थर हिसाब न रखी केवल राष्ट्र मंगल गोटे दूत माने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भूमिका नहीं गल। पृथ्वी किए अच्छे आज्ञा राजा टे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भूमिका नहीं जीव। आजिकल आम मैंने जो ऑफिसर मान को देखुचु से लोक पाखक डाक, जो दिन प्रशासक माने लोक निकट को जीवे से दिन ये जो दुर्नीति लांच मिछ कमिज कौन हम ना। जोगेश्वर कृष्ण से कथा शिखेले आवश्यक बेले राजा मध्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो पार नहेले सामान्य लोक पाखक न पहुंचले सामान्य लोक दुख केमी जीव। आजिकल राजा मान देखा करने बड़ा कष्टकर, आजिकल मंत्री मान देखा करने कष्टकर। जब लोक जब देखा कर तार समस्या केमती कह, ये समस्या सब खोला रहा दरकार। राजा प्रजा मान भीतर गोटे खोला द्वार रोते, प्रजा मैंने निर्विघ्न निज राजा पाखे कही पारुथिले, से भली जोगेश्वर कृष्ण चिंतन करते। आप जानते सोदामा भली दरिद्र होउछन तांकर बंधु, केबे चिंता करि ना मो बड़ लोक सहित बंधुता करिवे, जार किछि नै से मोर बंधु, जार सर्वस्व अछि से मोर बंधु रही कोन हो। से भली जने राजा चिंतन कले मु जीवी हस्तिनापुर को जाई समस्यार समाधान करबा पई गोटे चेष्टा करी, अधा भाग पाउथिया लोक को 5 खंड पड़ा से नहीं समाधान कर दियो। 5 खंड पड़ा मागिले बोध हुए दुर्योधन व्यतीत समस्त एक प्रकार राजी होते। एमती कि भीष्म कहले अरे पुत्र एगुड़ाक मानि जाकले आप कौन जानते, किंतु दुर्योधन अहंकार बल कहला सूच्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन भारत। छुंची अगरे जी जमी मुझे देवी नहीं, छुंची अगरे जमी नदेला दुख ना एवं युद्ध पर आमंत्रण कला। आप जानते जोगेश्वर कृष्ण कहले दुर्योधन सामदान जोठी आघात पाए दंड से आवश्यकता हुए। मु शांति कहली 50 भाग पाउथिया लोक 5 खंड पड़ा दे बोली कहली, दान भी कली, तुम से राजी हेलनी। एवं युद्ध पर प्रस्तुत हुआ। या भर गोटे सुंदर रहस्य अच्छी आप जानवा दरकार। दुर्योधन पत्नी भानुमती मने मने कृष्ण को बहुत भक्ति करे। भाभी कौ दिन गोटे भानु मो घर को जदि कृष्ण टी मो घर भोजन करते मु कृतार्थ हो जाते। जिते चेष्टा करिछि कृष्ण को सेमिति सुविधा पाइनि। से शुणिला जोगेश्वर कृष्ण से दिन राजबाटिक आसुचंती, निजर स्वामी को बहुत अनुरोध कला, देख तुमर राजनीति क्षेत्र में कौन हम तुम मानव न मानव कर न कर तुम कथा, किंतु मोर अनुरोध जोगेश्वर कृष्ण आसुचंती तुम घर मुरबी हिसाब से तुम टे कृष्ण को निमंत्रण कर मो घरे मुझे रोषे करी खाइबे बोली। सब बेले तो दुर्योधन कृष्ण को गाली दिए, से दिन भी से गाली देला, किंतु पत्नीर कथा को रक्षा करने चेष्टा कला। जिते 5 खंड पड़ा देव नाही, छुंची अगरे थिबा जमी दब नाही भी दुर्योधन कहला, जोगेश्वर कृष्ण फेरी जाउथिला बेले भानुमतींकर इशारा सूचना क्रमे दुर्योधन कहला मोर पत्नींकर आग्रह अच्छी आप मो घर टे भोजन करूँ। आप जानते आज्ञा महाभारत एक सुंदर कथा कहुई, संगे संगे कृष्ण बोली हसी कहले दुर्योधन तू जानी ना तमें प्राय बोधे भूली जाइछ मनीष 2टी परिस्थिति पर घरे खाए। कहले कौन ना प्रियता थिले विपद पड़ी, प्रियता थिले मनीष बंधु घरे खाए से कौन पैसा दे खाए, विपद पड़ी खाए कौन पैसा दे खाए। मु तुम घर खाइबार आवश्यकता नहीं। कहले कहीं ना मु विपद पड़ी ना कि तुम सहित मोर प्रियता नहीं, तुम सहित प्रियता थे तुम मो कथा रखी था कि मु तो मो मागु नी, राष्ट्र मंगल मागुली, तुम जो मो कथा रखुना तेणु तुम मोर बंधु नुहे। द्वितीय तो मु विपद पड़ी नहीं, विपद पड़े तुम जहाँ दे था खाई था, तेणु मु तुम घरे खाईपारि ना। देखो तापर जाई विदुर घरे खाइले तार किछि नाही, पखाल साग भजा आप समस्त जानते। कहिबार उद्देश्य होची जोगेश्वर कृष्ण नीति आदर्श को केते सुंदर भाव में मानुथिले। युद्ध हला, युद्ध समय 2 जन पक्षर 2टी लोक गले मागिबा पाई। जड़े राजा से भाविला मु पाद तले कौन बस मुंड पाखे बसबी, जो अर्जुन होउछंती तांकर भक्त तांकर शिष्य तांकर बंधु सबकिछि से पाद पाखे बसिले। आखि खोलला बेले दुर्योधन को देखिले, तापरे देखिले अर्जुन को देखिले। ये 2 जन जाक चिंतन कले जे कौन मागिबू। जोगेश्वर कृष्ण कहले मो पाखे 2टा जिनिस अच्छी, गोटे पटे मोर अक्षयणी सेना, गोटे पटे मु कौन नब नियो। दुर्योधन कहला बढ़िया कथा, मु तो 1 नंबर लोक, मोर अक्षयणी सेना दरकार।
सेना को नहीं गला। अर्जुन को पचारे तुम कौन दरकार कहला आज्ञा मोर किसी दरकार नहीं आपण दरकार। ये बड़ विचित्र कथा देश में बर्तमान लोक भगवान दरकार नहीं भगवान का ठारू दरकार बापा माँ दरकार नहीं बापा माँ ठारू दरकार बापा माँ पैसा दरकार बापा माँ पेंशन दरकार बापा माँ नाती नातुणी सेवा दरकार किंतु बापा माँ दरकार ना ठीक सेमती अर्जुन कहला कहला मोर अक्षणी सेना कौन आपण मोर दरकार कहला निरस्त्र लोकटा मत नहीं तू कौन कर मु अस्त्र चलेमी ना तर साहय कर मोर तो आप दरकार आप मोर मार्गदर्शक हे अस्त्र कौन दरकार कहले मार्गदर्शक माने कहले मोर रथर आप सारथी हे मोर मार्गदर्शन करेंगे आप कौ क्षेत्र को जी कौन करी केमी युद्ध करी बाट देखेबे ठीक अच्छे आपण मैंने जानी ईश्वर ठारू मागिबा ईश्वर को मागिबा श्रीकृष्ण ठारू मागिले अक्षौणी सेना कहार जय है कि नहीं आप जानते दुर्योधन पराजय है स्वयं श्रीकृष्ण को मागे अर्जुन जय है एक भी मनुष्य बर्तमान बुझे जन्म ठार मरण पर्यंत खाली ईश्वर को मागुचे केवे होइने ईश्वर हे प्रभु तमें मोर हो गले सब मिल जाए पुणी युद्ध जय सरला बहुत कथा आपण मैंने जानी शेष गोटे सुंदर उदाहरण आपको दौर राजस्व यज्ञ चली राजस्व यज्ञ गोटे बड़ कथा हुए प्रथम जन को अर्घ्य नदेला राजस्व यज्ञ हो पार ना अर्घ्य से ही लोक पाइब जे सबु दृष्टि उन्नत सबु दृष्टि श्रेष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ परम चरम हो बर्तमान क्या अर्घ्य दिज्व बर्तमान गोटे विचारक मंडली चलला आप जानते ये पूर्व कथा अवश्य समस्ते चिंतन कले जोगेश्वर ना समस्ते चिंतन कले पितामह भीष्म को आम कहवा से निर्णय करेंगे ये राजसभा प्रथम अर्घ्य किए पाइब राजसभा बहुत बड़ बड़ विद्वान बसचंती वयस्क लोक भी बसचंती ऋषिमुनि बसचंती गुरु भी बसचंती शिष्य भी बसचंती पिता बसचंती पुत्र बसचंती विद्वान साधु संत क्षत्रिय वैश्य समस्त बसचंती हजार हजार लोक मानकर ज्ञानी गुणी मानकर समाहार में आलोचना होची बड़ दायित्व ये प्रथमे क्या दिज्व अर्घ्य प्रथमे अर्घ्य दिगला तो अन्य मानक अर्घ्य दिज्व पितामह भीष्म को दायित्व दिगला भीष्म चारिआड़ को देखिले देखी देखी 5 मिनिट 10 मिनिट विचार करी बड़ पाटे कहले सभा भितर जड़े लोक पाइबार योग्य सी होती जोगेश्वर कृष्ण एति कथा कहला बेलू शिशुपाल सागे सागे उठला उठ प्रश्न कला कौ दृष्टि पाइबे कौन तांकर योग्यता आपण कहीं पक्षपाती हेले बहुत कथा कहले बहुत कथा कही सारा आप क्यों आधार रे कले कौन आज्ञा बयस आधार कर बाप बसला बेले पुओ केमी पाइब आज्ञा ज्ञान आधार रे कले गुरु संदीपनी अच्छा आप केमी पाइबे एमती अनेक कथा कही सारा पर समस्ते पचारे कले पितामह भीष्म को पचारिबा क्यों आधार रे कले पितामह भीष्म जो उत्तर देले ताहा ही होची मुख्य प्रसंग ताहा ही आलोच्य विषय कहले ये राजसभा गोटे लोक तमें बाहर कर दियो जे चतुर्वर्णर काम कर अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र काम कर जड़िए लोक मुझे देखुची से लोक पाखे केवल से गुण अच्छे कहले मिछ कथा है सी कौन 4 वर्णर काम कर समस्ते कंप्लेन कले किसी लोक जो पचारे किसी महात्मा मैंने पचारे कहले पितामह आपन टिके कथा विश्लेषण कर दियंतु पितामह भीष्म जहाँ विश्लेषण कले ताहा ही प्रसंग से कहले ब्राह्मणर कर्म होची अध्ययन अध्यापन जजन जाजन दान प्रतिग्रह अध्ययनम अध्यापनम जजनम जाजनम तथा दान प्रतिग्रह चैव ब्राह्मणानम कल्पयेत ब्राह्मणर काम होची 6टा पढ़िब पढ़ाइब यज्ञ करिब कराइब दान नब दब ए काम स्वयं श्रीकृष्ण कर केमिति कहले संदीपनी ठारू पढ़ई अर्जुन को पढ़ाई ना गीता है केमती केते शिष्य को पढ़ई यज्ञ कर प्रतिदिन यज्ञ निजे करती एवं राजस्व अश्वमेध आदि अनेक यज्ञ राजा मान द्वारा कराई दान आनी दान दे कवच कुंडल आनिबार बुद्धि किए थिला कर्णक ठारू आ केते लोक दान कर वस्त्र दान कर प्राण दान कर अनेक प्रकार दान कर नंबर 2 क्षत्रिय धर्म क्षत्रिय धर्म राजार काम क्षत्रिय दुष्ट मान को दलन करवा केड़ी दुष्ट मान को कंस जरासंध केते बुद्धि रे जल कर क्षत्रिय काम ना नुहे केते पुणी सबुठ बड़ कथा अर्जुन सारथी चक्र धरी निजे भीष्म को मारिया कई मारे से निजे बाहर चक्र मारिया तेणु ये गुड़िक क्षेत्र कर्म कर तृतीय हूँ वैश्य बहुत पृथ्वी में वैश्य तो सबुठ बड़ कम कृषि गोरक्षा वाणिज्य जी एक तो वैश्य कहुए मुझे कहली ओडिशा नहीं भारत में 2 भारत कौन संपूर्ण विश्व में 2 जन गोपाल जड़े दिलीप महाराज आउ जन हूँ जोगेश्वर कृष्ण गाई मान सेवा प्रति अधिका किए कर आप जानते हैं चक्र चलाउथिबा लोक बंशी बजाई पारे आवश्यक हेले मुंड नौथिबा लोक मुंड को परिवर्तन करने बुद्धिर प्रदान भी करें आप भावतु नहीं मुंड लवा लोकटा बहादुरिया मुंड को परिवर्तन करदे
जड़े चंडाशोक को जड़े धर्माशोक परिणत करवा, जड़े दुर्दश व्यक्ति को जड़े दानी पुण्यवान भाव ग्रहण तैयारी करवा मनीष हूँ बहादुरी। कृष्ण से गुण थे। चक्रधर भी चक्र धरी पारी बंशी भी बजाते, बंशीस्वर लोक मधुर विचार दौले, चक्र द्वारा दुष्ट मान विनाश कर। तो गीतार लिखी परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृता। शेष शूद्र मान कम आप जानते राजस्व यज्ञ से निजे कहले काम न कले मु खाइबिनी। जो युधिष्ठिर पचारे आपको मुझे कि कम देवी, आप तो सब कम बुझे ना, मुझे जो कम चाहिए कौन ना, जिते विद्वान ब्राह्मण साधु सन्थ आसवे समस्त पाद धोईदेवी, समस्त उच्छिष्ट पत्र उठेबी। कहबार उद्देश्य बंधुगण, एभली जड़े महात्मा महापुरुषंकर नाम अपेक्षा काम करवा, चित्र अपेक्षा चरित्र पूजा करवा दरकार। नाम नवा अपेक्षा काम जदि गोटे 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 काम जदि करवा। आप जानते कौन कौन कृष्ण संपर्क में आज आलोचना हो, चिंतन करवा जोगेश्वर कृष्णकर महाभारत चरित्र केते उज्जवल। शेष कहूँ आपण मान दिने रुक्मिणी मन दुख में बसी राजकार्य विरत हो जोगेश्वर कृष्ण पचारे देवी एत मन दुख कहीं ना, आपको कहीकि भी लाभ कौन, आप कार्य एत व्यस्त जे परिवार कथा बुझा आपको समय नहीं। कहले तेज कह, कहले मुझे जड़े संतान चाहे। प्रत्येक स्त्री काम ये से कहले मो भाया संतान टे पाइबा कहले आम दुई जन को 12 वर्ष तपस्या कर। 12 वर्ष तपस्या कलापर गोटे मात्र संतान जन्म होता ना हूँ प्रद्युम्न। किंतु से भली कृष्ण को आज समाज में कि प्रकार वर्णना करा बेले बेले शास्त्रीय दृष्टिकोण विचार कले महाभारत कृष्ण आमर आदर्श हो, कृष्णकर गुण वर्णना आमर आदर्श हो, कृष्णकर नाम अपेक्षा काम आदर्श है। मोर विश्वास कृष्ण जो जोगेश्वर कृष्ण जो आमको शिखाई गोटे कथा शिखी अर्थ, जी कहला देवी नहीं तार संसार रे रहिबार स्थिति नहीं, रहिबार अधिकार नहीं। एवं जो माने प्रकृत सर्वस्व हरई दुख कष्ट को सहनशील भाव में थे से माने दिने राजा ही पारंती। तेणु दुखरे थिबा समस्त बंधु माने भावंतु नहीं राति निश्चित पाइब, से लोकर मध्य सुखर सूर्य उदय हेब। तेणु दुखरे भांगी पड़ता लोक मैंने कृष्ण चरित्र को बेसी लक्ष्य करंतु, जीवन में मधुर स्पर्श आसब एवं आगामी जीवन आप मधुमय हेब। यह ही कृष्णकर आदर्श।